Hi guys, fantastic again. Welcome to another fantastic meeting for FLP India Forever FLP team, which is organizing this presentations and this training to all the FLP distributors, and it's total free of cost. We even invite you to come and if you want to use our Zoom platform, you're most welcome, so that we can give you all these facilities. And guess what? This is all free. So, sometimes when you say it's free, it has no value. So use it and do the fantastic business. Guys, today I'm going to have somebody very special. I'm going to have one guy who's extraordinary, who actually I know personally because he's a part of our team, and I know how involved he is with this company and how he loves this company, which is very, very important, because I really see this guy really works for my heart. So this guy, before I take his name, he was 15 years into the garment industry. So imagine being in the garment industry for 15 years. Well, garment industry is also very good. It's a very nice business. But in a garment business, remember one thing, there's a word called credit, which is a question mark again. And I know many people who are in these so-called good businesses. I use the word so-called. मतलब जो बोलते बहुत अच्छा बिजनेस है और उनका क्या हालत होता है बिजनेस में, क्योंकि क्रेडिट है और कोई लोग तो चीटिंग करके ऐसे लगता है कि उन लोगों को अवार्ड मिला है. तो मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा. So he was already in this building, has a factory. He had about 80 employees, but 80 people were working under him. Guys, imagine today, just to have 2 summers in my house, I have problems. So labor and somebody telling lies and somebody saying I have got, I want advance and blah, blah, blah. So I don't want to get into all that. Started FLP because he understood, I'll tell you why he started FLP. Not just did he love the products, he was a product user, but he loved the marketing plan, because this marketing plan gives you commission on MRP minus tax, which is outstanding. And 13 years he was in the business. He's now already with Forever. He's already a senior manager. He has over 20 managers in his team. Can you believe 20 managers in his team? So not just did he become a manager by doing a massive sale, इन्होंने जो खुद के ने सेल नहीं किया, बट पूरे टीम के अंदर जो उन्होंने चमत्कार किए, 20 मैनेजर्स उसके अंडर हैं, including Eagle managers, including senior managers, including people who have qualified for Eagle, Car Plan, and Millionaires Club. Or in his team, we have such managers. Now he himself has qualified for Eagle Manager, the Car Plan, the Millionaires Club, and Managers Retreat. So मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि I think we have to get him, because he's the main guy. You can see him now. We had somebody else before, and we have the shining star, because I can see him shining. Let's not get into more details. So Rajiv, hi, welcome. Thank you, sir. Thank you. Thank you for that lovely introduction. You're amazing. You're looking young. In fact, I think this COVID time you're looking much younger than before. Sir, products का कमाल है sir. Okay, very good sir. आज जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मेरे को चाहता हूँ कि the Zoom screen is all yours. So all the best. Thank you. Thank you, sir. Today Forever के बारे में बात कम करेंगे, लेकिन indirectly Forever के बिना तो हम कुछ बात करते ही नहीं है. So let's begin off. दोस्तों, communications ये सबसे बड़ा टूल है जो हमारा बिजनेस बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है. How we communicate with others is the basis on which our entire business is built. मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन लोगों के साथ कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ता है. तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं इन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कितनी अहमियत है, हकीकत में कैसा होना चाहिए, और ये कम्युनिकेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स दूंगा. आज के सेशन के पूरे सेशन में आई विल ट्राई टू बी लाइक अ कोच. मैं आपको सिखाऊंगा नहीं एग्जैक्टली कि कैसे कम्युनिकेशन करना है, लेकिन मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा कि जिससे आप अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं. कौन सी एरियाज में कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ये सब कुछ समझने के बाद मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करूंगा कैसे आप बहुत आसानी से अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं. एक बहुत सिंपल टिप शेयर करूंगा, लेकिन इतना पावरफुल टिप है हकीकत में. मतलब ये टिप अगर आप यूज करेंगे उसको समझ में आएगा आपको, लेकिन वो समझने के लिए पूरा सेशन देखना जरूरी है.
तभी आपको समझ में आएगा कि ये टिप क्यों वर्क करता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फॉरएवर के बिजनेस में आप और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे आप अपने टीम मेंबर्स के साथ फॉलो अप कर रहे हैं, उनके साथ रैपो बिल्ड कर रहे हैं, या उनको मोटिवेट कर रहे हैं, या मे बी कुछ एजुकेशन दे रहे हैं उनको डेवलप करने के लिए, नॉलेज शेयर कर रहे हैं उनके साथ, या फिर सिंपली आप जस्ट एक नए पर्सन को आप अपना प्रोडक्ट्स या बिजनेस समझा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे चाहे कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं आपके बिजनेस की, माध्यम तो कम्युनिकेशन है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए लेट्स जंप राइट इनटू द प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम साइमन सर ने ऑलरेडी बता दिया है। आई एम राजीव मेहता एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग टू यू फॉर द नेक्स्ट अबाउट 40 मिनट्स। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करता हूं मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड वील टॉक एज वी गो अहेड। Is my screen clear, sir? Simon sir, is my screen and my voice everything clear? Yeah, hello? Perfect. We can see you. Okay, yeah. Okay, thanks for the feedback. So I can go ahead now. Yep. So dosto, once again, welcome and let's get directly into communication skills. Now, during today's presentation, मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहूंगा, मैं ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आपका डेफिनेटली इंटरेक्शन चाहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच। करीबन 12 साल से मैं फॉरएवर में एज अ ट्रेनर हूँ। फॉरएवर के बिजनेस में तो 14 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन एज अ ट्रेनर पिछले 12 साल से हूँ। फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। कई बार हमारी इंडस्ट्री में खास करके लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बोलने को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट एंड द रीजन, बिगेस्ट रीजन आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल इज बिकॉज आई एम विद सच अ कंपनी जो कि हकीकत में गर्व की वजह है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ हूं मैं, तो ये गर्व से मैं कहता हूँ, शान से कहता हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। इस इंडस्ट्री को पूरा, मेरा जो समझ था इस इंडस्ट्री का, वो सब कुछ चेंज हो गया विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लेकिन आज का सेशन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस आप कैसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, उसके लिए जो आपका सबसे पावरफुल टूल है उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स टॉक एंड गेट राइट इनटू द प्रेजेंटेशन। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं आज के पूरे सेशन में? बेसिकली हम सबसे पहले समझेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसकी अहमियत क्या है, उसके बेनिफिट्स। अच्छा, अगर आपका कम्युनिकेशन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, वो समझ में आएगा आज के सेशन में आपको, कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करने से क्या लाभ पाएंगे आप। कम्युनिकेशन को थोड़ा विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे। इमोशंस और कम्युनिकेशंस का इंटरैक्शन क्या है ये समझेंगे। कम्युनिकेशन के ऊपर इमोशंस का क्या असर है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और लास्ट में, जैसे मैंने कहा, एट द वेरी एंड मैं एक ऐसी टिप दूंगा आपको जिससे आप अपना कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे अगर इसी चीज को अमल में रखेंगे। बहुत सिंपल सी टिप, लेकिन बहुत पावरफुल हो सकती है अगर उसको आप बराबर से इंप्लीमेंट करेंगे तो। एंड सो सिंपल टिप कि आपको लगेगा कि यार इतना सिंपल है ये, लेकिन आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? दोस्तों, आई वुड लाइक सम इंटरेक्शन, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मुझे अगर कोई बता सकता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन है वो है द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। मतलब कि मेरे दिमाग में या मेरे दिल में मेरे पास कोई आइडिया, कोई फीलिंग, कोई भी चीज जो मेरे पास है वो मैं शेयर करूं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कितने लोगों को लगता है ये गूगल का दिया गया डेफिनेशन है कम्युनिकेशन क्या है उसका। तो मेरा आपसे एक सवाल है एंड आई वुड लाइक द आंसर इन द चैट बॉक्स। आप चैट में अगर आप टाइप करके मुझे जवाब दे सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो
ये जो डेफिनेशन है क्या वो सही है या पूरा है? जिन लोगों को लगता है कि हाँ सही है, उन लोग 1 टाइप कीजिए। जिनको लगता है कि ये डेफिनेशन शायद कुछ अधूरा है या पूरा नहीं है या गलत है, वो 2 टाइप कर सकते हैं। प्लीज इंटरैक्ट। जिन लोगों को लगता है ओके, ज्यादा लोगों को 1 लगता है, राइट? ओके, आई सी लॉट ऑफ पीपल। कुछ लोगों को लगता है कि ये पूरा नहीं है डेफिनेशन। जैसे मैंने कहा, ये डेफिनेशन दिया है गूगल ने, और गूगल को हम लोग यूजुअली एक प्रमाण मानते हैं। अगर गूगल ने कह दिया तो सही है, लेकिन ये डेफिनेशन गूगल ने दिया है। ज्यादातर लोगों को 1 1 1 1 ओके। लेट मी शेयर विथ यू द फैक्ट। ओके, चलिए मैं आपके साथ फैक्ट शेयर करता हूं कि हकीकत में ये जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है, सही है या नहीं है, पूरा है या अधूरा है, ये आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको बताता हूं क्या है। ये कहता है कि इट इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये प्रोसेस हुआ, ये अगर हम उसको बाइफरकेट, अच्छा बाय द वे, कम्युनिकेशन पर्सनल और इम्पर्सनल 2 तरीके के होते हैं। एक बेसिक बाइफरकेशन बता देता हूं। आज मैं पर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करूंगा, बीच बीच में जिक्र करूंगा इम्पर्सनल कम्युनिकेशंस के ऊपर, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। एक पर्सन ने कुछ कम्युनिकेट किया, वो सेंडर बन गया, सामने वाले ने जो उसको रिसीव किया, वो मैसेज रिसीव किया तो वो रिसीवर बन गया। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया। जिन लोगों ने 1 टाइप किया उनके हिसाब से ये सही हो गया कि भाई इसने, एक पर्सन जो सेंडर ने जो मैसेज दिया वो रिसीवर ने रिसीव कर दिया। हकीकत में कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। Hi Baba, how are you? What's up? साइमन सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। साइमन सर, तेरे घी में हेलो, तेरे घी में मुंह चक्कर। आई थिंक साइमन सर, अरे तेरे घी में। साइमन सर, Don't get ideas. अजय भाई, Zoom मीटिंग इज ऑन, सुन ना। हाँ हाँ, अभी चालू हुआ। ओके ओके ग्रेट। सो होता है साइमन सर, साइमन है, आई मीन फाइनली लेट्स प्रोसीड विद द मीटिंग। तो कम्युनिकेशन बेसिकली 2 वे प्रोसेस है। अब ये 2 वे प्रोसेस है, ये क्लियर हो गया कि ये इट इज नॉट ओनली द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज, सामने से रिसीवर का एक रिस्पांस लेना या रिसीव करना भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कम्युनिकेशन हकीकत में 2 वे प्रोसेस है। कई बार मैंने कह दिया और हमें लगा कि मैंने कम्युनिकेट कर दिया। अब इस प्रोसेस को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन? अच्छा कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? आइए इस चीज को समझते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो मैसेज कम्युनिकेटर मतलब सेंडर ने दिया, वही मैसेज क्या रिसीवर ने रिसीव किया। एक आपके साथ एक छोटा सा डिटेल शेयर कर रहा हूं, एक स्टैटिस्टिक्स है। ऑलमोस्ट 90% जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया में, इंटरपर्सनल हो या देश देश के बीच में हो या कहीं भी, जो झगड़े होते हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है। और मिसकम्युनिकेशन ऐसा होता है कि सेंडर को लगता है मैंने ये मैसेज दिया था, लेकिन रिसीवर ने कुछ और समझा। यानी कि जो मैसेज भेज रहा है उसने एनकोडिंग बराबर किया, लेकिन जो डिकोडिंग हुआ रिसीवर की जगह पे वो कुछ अलग हुआ। मतलब मैंने कहा कुछ और, लेकिन सामने वाले ने समझा कुछ और। शब्द वही सुने लेकिन समझा कुछ और, मतलब कुछ और निकला। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत कुछ होने लगता है। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना है, इफ यू वांट गुड कम्युनिकेशन टू हैपन, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये सही तरीके से होना चाहिए। मतलब कि जो मैसेज आपने दिया वही मैसेज सामने वाले ने रिसीव किया, तब आपका कम्युनिकेशन अच्छा माना जाएगा। सही है? अग्री करते हैं सब लोग? जस्ट somebody is raising a hand. I don't know if you have a question, please type in the chat box. लेकिन मेरा सजेशन है, अगर आपका कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में टाइप करने से ही बेटर है कि प्लीज आप सेशन के एंड तक रुकिएगा। और इफ somebody wants to say something, you can please feel free to say it in the chat box. या फिर सेशन के एंड में अगर आप चाहेंगे तो हम लोग 5-10 मिनट थोड़ा सा बातें भी करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है या आपके व्यूज कुछ है
तो हम लोग शेयर डेफिनेटली करेंगे। तो राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस एंड हम ये कह रहे हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन तभी हुआ कि जो मैसेज हमें देना था वही मैसेज सामने वाले ने रिसीव किया। हमने जो कहा और जो आइडिया या जो इंफॉर्मेशन हमें देनी थी, रिसीवर ने वही मैसेज रिसीव किया। लेकिन ये यूजुअली होता नहीं है, उसकी वजह कई सारी होती है। एनकोडिंग हमारी जगह पे कुछ अलग हुआ, सामने वाले रिसीवर ने डिकोडिंग कुछ अलग किया, हमारा कहने का मतलब कुछ और था, सामने वाले ने समझा कुछ और। ये बहुत अलग अलग चीजें होती है, लेकिन कई बार ये हकीकत होता है, फैक्ट है। दिस इज व्हाट हैपेंस यूजुअली इन दिस वर्ल्ड। तो अभी ये चीज को समझते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन तो वही हुआ, हमने समझ लिया कि जो मैसेज मैंने जिस रूप में दिया वही फॉर्मेट में वही तरीके से सामने वाले ने समझा, तो भाई कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। लेकिन मेरा इससे आगे बढ़ के एक स्टेप आगे बढ़ के एक और क्वेश्चन है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? थिंक अबाउट दिस। सी हमें सिर्फ मैंने जो कह दिया वो सामने वाले ने समझ लिया, जो मैंने कहा वही सामने। लेट्स कोरिलेट, जो मैं बता रहा हूं ना उस चीज को हम हमारे फॉरएवर बिजनेस के साथ कोरिलेट करते हैं। मैंने सामने वाले को बोल दिया ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और आप ये बिजनेस अगर करते हैं तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। सामने वाले ने समझ भी लिया, लेकिन उसने फॉर्म साइन नहीं किया, उसने 2CC नहीं की, तो क्या मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ? अच्छा तो हुआ, वो समझ गया, जो आपने कहा वही उसने समझा, देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपकी मैसेज गया भी, लेकिन जो आप रिस्पॉन्स चाहते थे वो नहीं मिला। मेरे हिसाब से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर्ड इफेक्टिव ओनली इफ इट रिजल्ट्स इन द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स या जो फीडबैक आप चाहते हैं, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट समझाया, अगर उसके बाद उसने वो प्रोडक्ट लिया, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ। वो सब कुछ समझने के बाद में भी अगर वो बोलता है नहीं मैं सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, नहीं बात तो सही है, प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन बाद में देखेंगे, then your communication is not effective. Maybe आपने सही, you made very good communication, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की, उसने समझ भी लिया आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए, मे बी कहीं ना कहीं कोई डाउट रह गया जो आपने बताया नहीं। जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए था वो आप ले नहीं पाए। अगर आप किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपने फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी दिखाई, आपको लगता है सामने वाले के लिए बहुत सही है, लेकिन उसने एंड ऑफ द डे 2CC नहीं किया या बिजनेस में आपके जुड़ा नहीं, तो क्या आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ? सीरियस क्वेश्चन जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए। आज हम बहुत ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लिटरली फॉरएवर के बिजनेस में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ स्ट्रगल करते हैं। वो कहते हैं मैंने पूरा मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, मैंने उसको सारे प्रोडक्ट समझा दिए, मैंने उसको ये बता दिया, मैंने उसको वो बता दिया, लेकिन रिजल्ट कन्वर्जन नहीं हुआ, कोई आपके साथ जुड़ा नहीं। अगर जुड़ा नहीं, आस्क योरसेल्फ सीरियसली एंड ऑनेस्टली, आस्क योरसेल्फ, क्या आपको आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहा? कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हुआ, इसीलिए आपको रिजेक्शन ज्यादा मिल गए, या जो आप रिस्पॉन्स चाहते थे वो रिस्पॉन्स सामने वाले से ले नहीं पाए। इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप सामने वाले से वो रिस्पॉन्स ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। अग्री करते हैं सब लोग? आई वॉन्ट यू टू रेज योर हैंड एंड टेल मी कि अगर आप यहां तक मेरे साथ में हैं, जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी, यहां तक जो मैंने समझाया आपको क्लियर हुई ये बात? क्या आप सब लोग अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना चाहते हैं? वाओ, आई सी लॉट्स ऑफ पीपल आर रेजिंग हैंड्स, गुड। मतलब कि मेरी बातें समझ में आ रही है। बहुत सारे लोग अभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट रेजिंग हैंड्स, बट अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो शायद, अगर आप हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो दो वजह हो सकती है, या तो फिर मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा है आपके साथ में, मतलब कि मैं जो कह रहा हूं आप तक बात पहुंच नहीं रही है, या फिर जो मैं कह रहा हूं उस रूप में आपको तो मे बी जो रिस्पॉन्स मैं लेना चाह रहा हूं वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ओके, नाउ आई सी लॉट मोर पीपल रेजिंग हैंड्स। ओके, मेरा सजेशन है प्लीज इंटरैक्ट। अगर इस सेशन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सही फीडबैक दीजिए मुझे। अगर आप फीडबैक देंगे तो मैं उस तरीके से, मैं आगे जो बताने वाला हूं और ज्यादा आपको सही तरीके से बताऊंगा। सी मैं जानता हूं कि जितने लोग फॉरएवर के बिजनेस में जुड़े हैं ना, वो सब अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। आपके बिजनेस में आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा
मतलब कन्वर्जन लेना चाहते हैं, अगर किसी को आप प्रोडक्ट बताए और आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट ले ले, आप किसी को अपॉर्चुनिटी बताए, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ जुड़ जाए, आपका फॉर्म साइन अप करे, आपके साथ में 2CC करे, आपके साथ में मिलकर बिजनेस बिल्ड करे, अगर ये सब आप चाहते हैं तो सबसे बेस्ट माध्यम या सबसे बेस्ट टूल जो आपके पास है वो है आपका खुद का कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन की मास्टरी जितनी आपकी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्पांस रेट, आप जिस तरह का रिस्पांस लेना चाहते हैं वो रिस्पांस ले पाएंगे। तो इंटरैक्ट विथ मी ड्यूरिंग दिस सेशन। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कैसे किया जाए उसकी बातें करेंगे, बट आपने समझ लिया कि इफेक्टिव होना जरूरी है कम्युनिकेशन का। सही हो या सबसे पहले तो सही होना चाहिए, इट मस्ट बी गुड कम्युनिकेशन, मतलब कि आप जो मैसेज देना चाहते थे वही मैसेज सामने वाले ने रिसीव किया, वो वही फॉर्म में, या जो आप कहना चाहते थे वो चीज, या जो समझाना चाहते थे सामने वाले को, या मे बी उसको आप मोटिवेट करना चाहते थे, उसको एडुकेट करना चाहते थे, जो आप सामने वाले को समझाना चाहते थे वो मैसेज वो सही तरीके से वहां पहुंचना है। तो मतलब कि अच्छा कम्युनिकेशन करना जरूरी है, गुड कम्युनिकेशन। सेकेंडली, आप अगर वो रिस्पॉन्स जो आप लेना चाहते हैं तो वो अच्छा तो होना चाहिए, उसके साथ साथ में इफेक्टिव भी होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों बातें जरूरी है, बट ये दोनों बातें मतलब अच्छा और इफेक्टिव दोनों कम्युनिकेशन में हो आपका, तो वो समझना है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को समझते हैं। कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, हमें ज्यादातर लगता है कि हम जो कहते हैं वही कम्युनिकेशन है, हकीकत में एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा बाय द वे, ये बाइफरकेशन मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। आजकल डिजिटल माध्यम से हम ज्यादातर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो ज्यादातर हमारा इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि हम लोग व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, सोशल मीडिया पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, या तो फिर हम जूम मीटिंग्स में बुलाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन भी जूम से करते हैं, जहां हम फेस टू फेस नहीं मिल रहे लेकिन वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, या वो प्रेजेंटेशंस भी जैसे ये मीटिंग हो रहा है जूम पे कर रहे हैं। अब ये अलग माध्यम है, ये अलग तरीका है कम्युनिकेशन का, इम्पर्सनल कम्युनिकेशंस के कैटेगरी में आता है, लेकिन उसका बेसिस या फंडामेंटल्स भी पर्सनल कम्युनिकेशन के तरीके ही है। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। उस इम्पर्सनल तरीके जो है उसको भी इफेक्टिव करना है तो ज्यादा उसको पर्सनल करना जरूरी है। तो सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन को समझते हैं। पर्सनल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अगेन, एक होता है कि आपने क्या कहा और कैसी आवाज में कहा, मतलब कि आपका वॉइस, इसको मैं कहूंगा कि कैसे आपने कहा, हमने कुछ बोला और क्या बोला और कैसे बोला, ये दो अलग अलग बातें हैं। एट द सेम टाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग कैसे एक अगर वर्ड में मैं कैटेगराइज करूं तो इसको बॉडी लैंग्वेज की कैटेगरी कह सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, अब बॉडी लैंग्वेज मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका बॉडी बहुत कुछ कहता है, जैसे कि अभी मैं उसके भी पार्ट्स बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, समझो आप कोई नए पर्सन को मिलते हैं, मे बी ऑनलाइन मिले हैं, मे बी आप वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, मे बी जूम के ऊपर किसी को मिल रहे हैं, या मे बी आप फेस टू फेस मिल रहे हैं, अक्रॉस द टेबल बैठे किसी को आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उसको, यानी कि आप क्या बता रहे हैं, कंटेंट क्या दिखा रहे हैं उसको, नंबर वन। सेकेंडली, कौन से आवाज में उसके साथ बात कर रहे हैं, नंबर टू, कैसे बोल रहे हैं उसके साथ, और तीसरा, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ बोल रहा है उसको। इस वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है, आई वॉन्ट यू टू आंसर मी थ्रू द चैट में आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। अगर कंटेंट आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंटरनेट के ऊपर कई बार सुनते हैं कंटेंट इज किंग, अगर आपको लगता है कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 1 टाइप कीजिए, अगर आपको वॉइस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो 2 टाइप कीजिए, और अगर आपको लगता है कि बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 3 टाइप कीजिए। 1, 2 and 3, जस्ट टाइप सिंपली, प्लीज गिव मी आंसर्स। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को 1, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 2 and 3, 2 and 3,
ओके 2 and 3, ज्यादातर लोगों को, अच्छा ऑल 3, ओके 3, 2, 1, ये तीनों हिस्से हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट। वेल, आज मैं आपको वंडरफुल, मतलब ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं उतना? क्या हम जब बात करते हैं लोगों से, हम लोग यूजुअली फोकस कर रहे हैं हम उसको क्या बता रहे हैं उसके ऊपर, मैंने उसको ये बता दिया, मैंने उसको वो बता दिया। So somebody saying 1 and 3, voice is not important, okay, और least important उनको लगता है, okay, कुछ लोगों को लगता है 1, content is king, okay, दोस्तों content is king बात सही है। So lots of people have given answers, it's good. I first of all let me appreciate कि आप लोग interact कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, thank you for that interaction। लेकिन आज आपको बता रहा हूं मैं, और ये जो मैं परसेंटेज आज बता रहा हूं कि किस चीज की अगर 100 मार्क आपको देने हैं, आप किसी को मिलते हैं तो 100 मार्क में से आपको मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन किसको कितने प्रतिशत इंपॉर्टेंस देता है, ये इसके लिए बहुत बड़ा स्टडी हुआ था। करीबन 1000 अलग अलग लोगों को दूसरे हजार लोगों से 1-to-1 मीटिंग की गई और उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज किया गया। ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 6-7 साल ये एक्सपेरिमेंट चला था और उसके रिजल्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज आज आप समझिए। अगर ये चीज समझ लेंगे तो आपका कम्युनिकेशन में आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है वो क्लियर होगा। सबसे पहले लेते हैं कंटेंट। कंटेंट इज ओनली 7%, मतलब आप जो भी बता रहे हैं ना, क्या आपने कंटेंट बताया उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% है, ओनली 7%। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस आवाज में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हो उसके साथ। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर वॉइस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज विच इज ऑलमोस्ट 55%। सोच के देखिए दोस्तों, 55% सामने वाला ध्यान देता है आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। कभी सोचा था बहुत सारे लोगों को ये एक इट्स अ रेवोल्यूशन। हम जब भी किसी के साथ में बात करते हैं, समझो प्लान दिखा रहे हैं या प्रोडक्ट समझा रहे हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं हम क्या इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं उसके ऊपर। भाई मैंने उसको ये बता दिया, मैंने एलोवेरा क्या क्या काम आता है, एलोवेरा के सारे सब कुछ बता दिया, एलोवेरा का प्राइसिंग का कंपैरिजन समझा दिया, उसके सारे बेनिफिट समझा दिए, मैंने वो समझा दिया। आपने क्या समझाया वो तो खाली 7% इंपॉर्टेंस। हकीकत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कैसे समझाया। तो बेसिकली what you say is the least important. 93% depends, 93% on how you say it. आपने कौन से आवाज में बात की और आपने जब बात कर रहे थे तब आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा था। सोच के देखिए, 93% डिपेंड्स ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर वॉइस। आपने कैसे बात की, मतलब क्या आपने कुछ दिखाया। अब इम्पर्सनल कम्युनिकेशंस के जमाने में जैसे हम बात कर रहे हैं आज, ज्यादातर लोगों को ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं, डिजिटल मीडियम यूज कर रहे हैं। तो वर्चुअल मीडियम में भी आज ज्यादा इफेक्टिव अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो व्हाट्सएप चैटिंग पे या डायरेक्ट मैसेज पे या मैसेंजर पे बात करके नहीं रिस्पॉन्स आएगा। जितना ज्यादा पर्सनल करेंगे कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा आप वीडियो चैटिंग करेंगे, इसीलिए इम्पर्सनल जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं ना, उसको भी ज्यादा पर्सनलाइज करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, आपने सिर्फ कुछ राइटअप डाला, बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं। अगर आपने एक इमेज डाला तो और ज्यादा लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो डाला तो सबसे ज्यादा लोग देखते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वीडियो इज व्हाट कम्युनिकेट्स बेटर विद द ऑडियंस। सो ये जो बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स समझने की जरूरत है। उस बेसिक्स को समझ लेंगे तो फिर आप वो चाहे सोशल मीडिया के ऊपर इन बेसिक्स को यूज करेंगे तो भी फंडामेंटल्स तो सेम ही रहेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस। लेकिन ये जो मैं आपको परसेंटेजेस बता रहा हूं ना, 7% कंटेंट व्हाट यू से एंड 93% हाउ यू से, ये परसेंटेजेस सिर्फ सही है फर्स्ट 1 आवर ऑफ द मीटिंग। लेकिन पहले 1 घंटे में आप जो बता रहे हैं, फर्स्ट 1 आवर ऑफ योर मीटिंग, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। पहली इंप्रेशन को बदलना सामने वाले के दिमाग में बहुत मुश्किल होता है।
तो फर्स्ट इंप्रेशन सही होना बहुत जरूरी है। तो पहली मीटिंग में पहली आपकी जो इंप्रेशन बन रही है उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, आपका वॉइस, आपका बॉडी लैंग्वेज। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप इवन अगर उसको पर्सनली नहीं भी मिल रहा है पर्सन को, तो भी उसको वीडियो चैटिंग पे या जूम पे मिलिए और जूम के ऊपर फोकस कीजिए कि आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करें। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो रहा है और कितना इफेक्टिव हो रहा है। अब हैविंग सेड दैट, लेट अस अंडरस्टैंड कि वॉइस के क्या पार्ट्स है, कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी अहमियत है उसकी, बॉडी लैंग्वेज की क्या पार्ट्स है और उसकी कितनी अहमियत है। सी अगेन एज आई सेड, ये फर्स्ट 1 आवर कई बार लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है और ये कॉपीराइटर्स खास करके ये कहते हैं कंटेंट इज किंग। इंटरनेट के ऊपर कुछ भी आप डालो, कंटेंट इज किंग। कंटेंट किंग है, लेकिन जिसने भी कभी भी चेस खेला होगा ना वो समझेगा कि किंग के मरने से गेम भले खत्म हो जाती है, तो कंटेंट की अहमियत है, लेकिन वो सिर्फ 7% है। हकीकत में रणभूमि में तो क्वीन का ही राज चलता है। एंड द क्वीन इज हाउ यू से इट इन योर कम्युनिकेशन। कंटेंट मे बी द किंग, but the queen is who rules the entire battlefield. तो आपको अगर जंग जीतनी है तो फोकस करना है on how you say it. आप कैसे उस चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। तो आइए इस चीज को और थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे उसको और बेटर कर सकेंगे। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन वॉइस के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ध्यान से देखिएगा, करीबन 1 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसको। क्या आवाज आ रही थी? ओके, आ रही थी आवाज। ओके, वॉइस वाज क्लियर, वॉइस वाज क्लियर, वॉइस वाज वेरी क्लियर। ओके, तो वॉइस का इंपॉर्टेंट समझ में आया। अगर वॉइस सही नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं वॉइस के कितने पार्ट्स है और किसकी अहमियत क्या है। सी अगेन, मैं आई एम नॉट अ वॉइस आर्टिस्ट, मैं कोई म्यूजिक या कुछ सिखाने वाला नहीं हूं, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉइस के क्या पार्ट्स है। सबसे पहले तो किस टोन में आप बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो टोन की वजह से होती है। आपने कुछ एक अलग टोन में बात किया, सामने वाले ने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर दिया, आपका टोन सही नहीं था, आपके टोन में बहुत एग्रेशन था, आपके टोन में सरकाज़म था, आप सामने वाले ने उसका मतलब ही कुछ अलग निकाल लिया। ये होता है या नहीं होता है? अग्री करते हैं आप? जस्ट सोच के देखिए, ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि ज्यादातर लोग टोन को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। सही टोन नहीं होता, आपने टोन सही नहीं यूज किया। भाई टोन अलग है, आपका बात करने का जो शब्द तो सही थे, शब्द में कुछ गलत नहीं था, लेकिन जिस टोन में आपने वो शब्द बोले वो सामने वाले ने कुछ अलग ही समझ लिया। तो टोन आपका वॉइस का कैसा होना चाहिए इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सेकेंडली, मैं 4 पार्ट होते हैं वॉइस के, मैं हर एक चीज के ऊपर थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू। ये आपको समझना है कि इन सारी चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पिच। आप हाई पिच में बात कर रहे हैं, लो पिच में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आप एनालाइज कीजिए। मैं आपको ये पिच समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से गुलजार साहब की कोई शायरी है। आपको पता है गुलजार साहब कितनी ब्यूटीफुल शायरी लिखते हैं, पता है ना, सबने सुना है। तो सपोजिंग गुलजार साहब की शायरी है और अब अमिताभ बच्चन जी अपने बैरिटोन वॉइस में उस चीज को एकदम, अमिताभ बच्चन का वॉइस जो है ना बहुत लो पिच का है एकदम, मतलब उसके वॉइस में, बैरिटोन वॉइस में वो वही शायरी पढ़ रहे हैं। सुनना पसंद करेंगे? बहुत अच्छा लगेगा, हाँ या ना? अच्छा लगेगा, डेफिनेटली हर एक जन को अच्छा लगेगा। लेकिन अब उस सिनेरियो को थोड़ा चेंज करते हैं। शायरी वही है गुलजार साहब की, वही दर्द भरी या मे बी वेरी पॉइग्नेंट एकदम शायरी, मीनिंग से भरी हुई। अब मैं दूसरा एक वॉइस आपको रेकमेंड करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि वही शायरी
अमिताभ बच्चन की जगह वो वॉइस में, से श्रीदेवी जी की वॉइस में। श्रीदेवी जी, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, शी वाज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। मैं जस्ट बट उनका जो वॉइस है वो बड़ा हाई पिच का वॉइस था। अब सोच के देखिए कि वही शायरी अगर श्रीदेवी जी अपने वॉइस में कह रही है तो क्या आपको लगता है वो शायरी इतनी इफेक्टिव लगेगी आपको? इमेजिन कर सकते हैं? या फिर एक अलग सिनेरियो लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे श्रीदेवी जी का एक बहुत बढ़िया सा श्रीदेवी जी का एक बहुत बढ़िया सा गाना था। कौन सा गाना था, किसको पता है? बहुत फेमस। कैन एनीबडी रिमाइंड मी? इन द चैट बॉक्स यू कैन टाइप। जो श्रीदेवी जी का बहुत फेमस गाना था, कोई सोच? एनीबडी कैन एनीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स? हवा हवाई। यस, रोनक नोज परफेक्टली, हवा हवाई। अब ये हवा हवाई वाला जो गाना है ना, वो सोचिए कि अगर अमिताभ बच्चन जी के वॉइस में अगर गाया जाए तो क्या आप उसको मजा एंजॉय कर पाएंगे? मतलब कि पिच, कौन से पिच में आपने लो पिच में या हाई पिच में बात किया ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई सीरियसनेस आपको किसी को बतानी है तो देन योर वॉइस शुड बी लो। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्स्टेंटली लो वॉइस में बात करना है। इट वुड साउंड हवा हवाई। वेरी ट्रू। सो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिच को भी मॉड्यूलेट करना है। आप अगर अमिताभ बच्चन जी, ही इज अ मास्टर ऑफ वॉइस का, उनकी मास्टरी है, कमाल का वॉइस है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी उनको सुने ना, तो देखिए वो कैसे अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं। कभी हाई पिच, कभी लो पिच, कभी पॉज लेते हैं, कभी किस वर्ड के ऊपर एम्फेसिस करते हैं, उनकी टोनैलिटी क्या होती है, उसको स्टडी कीजिए। क्यों उसका वॉइस हमें सुनना बहुत ज्यादा पसंद आता है? इज बिकॉज he learns to modulate his voice very well. वो जैसा कंटेंट है उसके हिसाब से अपना वॉइस। अमिताभ बच्चन के वॉइस में कॉमेडी भी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो कॉमेडी का वॉइस है और उसका जो सीरियस वॉइस है, वो दोनों में बहुत अंतर है। वो अपने वॉइस को उस जैसा जैसा डायलॉग या जैसा सिचुएशन वैसे मॉड्यूलेट करते हैं। तो सेम थिंग हमें करना है जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं। हाई पिच का अपनी जगह है, लो पिच की अपनी जगह है, बट अ प्रेजेंटेशन इज लाइक अ पीस ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में हाई भी जाता है, लो भी जाता है, सब कुछ मिक्स होना चाहिए। यू हैव टू कीप मॉड्यूलेटिंग योर वॉइस थ्रू आउट। जो चीज को एम्फोसिस करना है, जो चीज का सीरियसनेस समझाना है, तब उसको लो पिच कीजिए। जब बात कर रहे हैं तभी हाई पिच की अपनी जगह है, लो पिच की अपनी जगह है। अभी जैसे ए आर रहमान का म्यूजिक बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक होता है और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होता है, लेकिन आप नोटिस कीजिए उसके म्यूजिक में हाई बहुत ज्यादा हाई जाता है, लो बहुत ज्यादा लो जाता है। हाई लो का जो कॉम्बिनेशन करता है, इट्स सो ब्यूटीफुली मिक्स्ड, ताकि वो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है हमें सुनकर। व्हाई? बिकॉज इट इज मॉड्यूलेटेड सो वेल। वैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन भी, हम ए आर रहमान के म्यूजिक की तरह हमें गाने नहीं बैठना है, 5% 8% मतलब हमें सॉन्ग नहीं गाना है, लेकिन वॉइस को मॉड्यूलेट करना जरूरी है। तो टेक केयर ऑफ द पिच दैट यू आर यूजिंग। कभी हाई पिच, कभी लो पिच, बट मॉड्यूलेट योर वॉइस। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द वॉल्यूम। कितने ज्यादा जोर से आप बात कर रहे हैं या कितने लो वॉल्यूम। जैसे कि आपको एक राज की बात, एकदम राज की बात समझिए, ये चीज मैं आपके साथ आज शेयर। See, when I said, मैं राज की बात बता रहा हूँ, सडनली मैंने मेरा वॉल्यूम डाउन कर दिया, तो आई एम श्योर आप लोग सब लोग का एकदम इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सोच के देखिए, अगर आप किसी के साथ कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, सीक्रेट जब शेयर कर रहे हैं तभी जस्ट आपने अपना वॉइस वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे कर दिया, ऑटोमेटिकली सामने वाले का ध्यान खींचता है उसके ऊपर। तो यू नीड टू क्रिएट दैट। वैसे ही अगर समझो आपको कॉन्स्टेंटली आप लो वॉइस में बात करेंगे ना, सामने वाला थोड़ा टाइम के बाद उसका इंटरेस्ट चले जाए। तो आपका वॉइस अगर बहुत ज्यादा हाई है ना, तो भी सामने वाला मेंटली शट ऑफ हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो इट शुड नॉट बी हाई, इट शुड नॉट बी लो, बट इट शुड बी मॉड्यूलेटेड। पिच, वॉल्यूम, टोन, ये सब कुछ चेंज करते रहना है आपको, कॉन्स्टेंटली मॉड्यूलेट करते रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पॉजेस। अब पॉज मैंने इसमें नहीं डाला है, बट पॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ही वाज द मास्टर ऑफ पॉजेस। वो पॉज इतने लंबे लंबे लेते थे, लेकिन
उनके पॉज में भी लोग, हमें लगता था सो जाते हैं, लेकिन सो नहीं जाते, उनको इंतजार होता था कि अब क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस फिनिश करेंगे तो अब ये पॉज के बाद आएगा क्या, तो लोग इतने सुनते थे आतुरता से। तो यू हैव टू लर्न टू यूज द पॉज ऑल्सो, टोन, पिच, वॉल्यूम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और एस्पेक्ट रह गया, इज द स्पीड। बहुत ज्यादा फास्ट अगर बात करेंगे ना, बहुत कुछ लोगों की आदत होती है इतने फास्ट में, इतनी स्पीड में बात करते हैं ना। एक बात याद रखिए, मैं स्पीड के लिए जस्ट एक थोड़ा पॉइंटर्स देता हूं आपको। अगर आप कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा फास्ट बात करते हैं, जैसे अगर आपकी बात करने की स्पीड कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा फास्ट है, तो जल्दी से सामने वाला आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्लो स्लो और बहुत रुक रुक के भी बात करेंगे, और इतना स्लो बात करेंगे कि सामने वाले को फिर ऐसा लगने लगता है कि शायद आपका यू आर स्लो, मतलब ये बंदा कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगता है। तो स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड में भी बात नहीं करनी है। इंग्लिश में कहावत है, मतलब जो कहते हैं कि फास्ट टॉकर, और फास्ट टॉकर इज अ कॉन मैन, मतलब जो लोग झोल करते हैं उसको फास्ट टॉकर कहते हैं। वो क्यों फास्ट टॉकर कहते हैं उनको? क्योंकि वो ज्यादा स्पीड में बात करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर होता है। सामने वाला सुनने के टाइम पे ये कॉन्शियसली एनालिसिस नहीं करता है, ये नहीं सोचता ये बहुत ज्यादा स्पीड में बात कर रहा है तो यार इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑलरेडी वो सिग्नल दे रहा है कि ये भरोसा के पात्र नहीं है। तो ज्यादा स्पीड में बात नहीं करनी है, ज्यादा ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी है, ज्यादा लो पिच में या ज्यादा हाई पिच में बात नहीं करनी है, बहुत स्लो बात नहीं करनी है, बहुत ज्यादा धीमी बात नहीं करनी, सब कुछ मिक्स करते रहना चाहिए। आपकी स्पीड, आपका वॉल्यूम, आपका पिच, आपका टोनैलिटी, ये सब कुछ कॉन्स्टेंटली मॉड्यूलेट करना है इन टुगेदर, मतलब एक कॉम्बिनेशन में। इट इज लाइक अ पीस ऑफ म्यूजिक जिसके अंदर हाई लो वॉल्यूम ऊपर नीचे सब कुछ मिक्स होता है, तभी आके एक बहुत ब्यूटीफुल पीस ऑफ म्यूजिक तैयार होता है। वैसे ही आपको आपके प्रेजेंटेशन को वैसा करना है, टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड सब कुछ मिक्स करना है। एंड ऑफ कोर्स द पॉजेस, जहां पे ना टोन है, ना पिच है, ना वॉल्यूम है, ना स्पीड है, पॉज कहाँ आप कितना यूज करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वॉइस के लिए इतना ही आज के लिए, बट ये चारों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आई होप यू आर ऑल टेकिंग। somebody is asking me, okay, is there any difference between pitch and modulation? Modulation का मतलब है कि पिच को आप चेंज करते रहो, हाई पिच लो पिच दोनों को मिक्स करो, उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन मींस कि आप आपके पिच को बढ़ा भी सकते हो, लो भी कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो, चेंज करना उसको मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन मींस कंट्रोलिंग दी हाईज एंड लोज ऑफ योर वॉइस, जो हाई पिच और लो पिच को कंट्रोल करना, कभी हाई लेके जाना, कभी लो लेके आना। अब मैं वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं एकदम, अगर मैं सिंगर होता तो मैं आपको एकदम हाई पिच में गा के सुनाता था और वही चीज लो पिच में गा के सुनाता था, बट आई अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ म्यूजिशियन। बट बेसिकली मॉड्यूलेशन मींस मिक्सिंग ऑफ ऑल। तो पिच एंड मॉड्यूलेशन आर डिफरेंट थिंग्स। पिच को आप हाई या लो कर सकते हैं, इंटोनेशन शुड बी देयर। इंटोनेशन, ओके, इंटोनेशन अगेन टोन के अंदर आ गया, इट इज पार्ट ऑफ इट। टोनालिटी है जो हम बात कर रहे हैं ना, तो इंटोनेशन उसके अंदर आ गया, उसके हिस्से में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं आज। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, क्योंकि और बहुत सारी बातें करनी है। अभी बात करनी है बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज के बहुत पार्ट्स है और बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के बारे में जब बात करेंगे तो अगेन बॉडी लैंग्वेज कितना इफेक्टिवली कोई भी मैसेज को कन्वे कर देता है, उसके लिए अगेन एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। आई जस्ट प्ले अ शॉर्ट, इट्स अ 3.5 मिनट वीडियो, देखिए शायद आपको पसंद आएगा। सो दोस्तों देखा, ये वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ एक ही था, ये जस्ट देखिए कि बॉडी लैंग्वेज कितना कुछ कह देता है। ये इंसान, चाहे चार्ली चैपलिन के पुराने मूवीज देखो, चाहे मिस्टर बीन के देखो, मैं जस्ट टू मतलब आज जो पॉइंट मैं करना चाहता हूं कि ये लोग अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कितना कुछ पोर्ट्रे कर देते हैं, कितने इमोशंस बता देते हैं सामने आपको, मतलब उसमें कोई भी डायलॉग की जरूरत ही नहीं पड़ती।
ये लोग सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज यूज करके, ओनली यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज दे कैन एक्सप्रेस एनीथिंग दैट यू वांट। मतलब जो इमोशन आपको दिखाने, पूरा एक स्टोरी आपके सामने अनफोल्ड हो जाता है, लेकिन आपको समझ में आता है उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो सामने वाले को क्या थी, मतलब कितने सारे इमोशंस वो डिस्प्ले कर देता है जस्ट यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स को समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये वीडियो जस्ट इसीलिए चूज किया था कि थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिल जाए, एक अच्छा it is a good showcase of how body language can be effectively used. Mr. Bean, Rowan Atkinson नाम है ये एक्टर का, is a very very successful actor, very talented actor, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है ये बीन कैरेक्टर की वजह से, and that is where he has used his body language, facial expressions, उसके हाथ, बॉडी का मूवमेंट, वो सब कुछ ऐसे मास्टरफुली यूज किया है। वो चीज को समझिए और आइए आज समझते हैं कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज अगर प्रोफेशनली यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले आपका पोस्चर और ड्रेसिंग बहुत मैटर करता है। जब भी आप किसी को मिलते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, से मे बी ओवर अ जूम मीटिंग, तो आप किस तरह से बैठे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या दिख रहा है, आपका ड्रेसिंग क्या है, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। कई बार मैं देखता हूँ लोग जूम के ऊपर भी लोगों को मिलते हैं तो लाइटिंग कहाँ से आ रहा है उसका ध्यान नहीं है, उनके फेस के ऊपर डार्कनेस आ रहा है, लाइट उनके पीछे से है, मतलब वो सारी चीजें अगर हमें प्रोफेशनली काम करना है, पोस्चर एंड ड्रेसिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको सामने वाला पर्सन जब भी देखता है ना, यकीन मानिए इट इज ऑलमोस्ट 17 टाइप्स ऑफ डिफरेंट विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स, 17 अलग अलग टाइप के आपके बारे में उसने डिसीजन सबकॉन्शियस लेवल पे ऑलरेडी ले लिया आपके बारे में, सिर्फ आपके ऊपर एक नजर डाल के। वो कॉन्शियसली नहीं सोचता है कि इसका ड्रेसिंग ऐसा है, ये ऐसा खड़ा है इसके लिए, उसके पोस्चर ऐसा है इसके लिए, कॉन्शियसली कोई नहीं सोचता। एक जस्ट सिंपल एग्जांपल देता हूं आपके सामने, सोच के देखिए एक चीज। चलिए पहले एक बार इसके बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये एग्जांपल देखते हैं। जेस्चर्स, वो बात कर रहे थे अभी क्या जेस्चर्स हम यूज कर रहे हैं। जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई भी सामने वाले से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे हाथ कैसे हिल रहा है, हमारा फेस कैसा हिल रहा है, हर एक चीज मायने रखता है। तो कैसे जेस्चर्स होने चाहिए, क्योंकि हर एक जेस्चर एक मैसेज दे रहा है सामने वाले, तो वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट कितना कर रहे हैं हम, कई बार लोग, मैं देखता हूँ ऑफिस में हम लोग आई कांटेक्ट की बात करते हैं, कई बार लोग इतने बिजी होते हैं देखने अपना लिखने में, वो अपना नोटबुक में लिखते जा रहे हैं, उसको मार्केटिंग प्लान समझा रहे, लेकिन सामने वाले से आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहे। अब कर ही नहीं रहे, सामने वाले का ध्यान कहीं इधर उधर जा रहा है और ये बंदा लगा पड़ा है। मैं मुंबई ऑफिस में कई बार देखता हूँ लोगों को बहुत अर्नेस्टली, बहुत सिंसियरली वो अपना मार्केटिंग प्लान दिखा रहे, लेकिन सामने वाले का ध्यान पूरी ऑफिस में घूम रहा है, उसको जो आप दिखा रहे हो वो देख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो आई कांटेक्ट मिसिंग है। और कई बार इवन द रिवर्स इज ट्रू, कई बार मैंने ये भी देखा है, सामने कोई लेडी बैठी है और ये जो बंदा कुछ समझा रहा है, वो चीज जो प्रेजेंटेशन करने बैठा है उसको सिखाया गया है कि आई कांटेक्ट करना चाहिए। अब वो सामने वाले लेडी को ऐसा देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है कि आई कांटेक्ट वो ब्रेक ही नहीं कर रहा है। अब सामने वाली लेडी वो अनकंफर्टेबल हो रही है, ये भी हो जाता है कभी। सो इट्स अ बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट एंड आल्सो नॉट, मतलब किस तरह का आई कांटेक्ट है आपका, आपकी आईज क्या बोल रही है, क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा, प्लस आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपका आई कांटेक्ट। सो दिस इज समथिंग व्हिच कम्स विथ लर्निंग, मतलब धीरे धीरे आप सामने वाले को एनालाइज कीजिए, बी केयरफुल ऑफ जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेशियल एक्सप्रेशंस। ये 4 बेसिक पार्ट्स है बॉडी लैंग्वेज के। योर पोस्चर एंड ड्रेसिंग, आपके बॉडी कैसा है, मतलब आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, आपके जेस्चर्स कैसे हो रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा हो रहा है, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन। मैं अगेन एक, जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आप लोग को मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो, और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उन क्वेश्चंस के मुझे जवाब देना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। पहले वो एग्जांपल जहाँ पे आप जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो, इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो। समझो एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा जो एग्जाम का रिजल्ट लेके घर पे आ रहा है।
एग्जाम का रिजल्ट लेकर घर पे आ रहा है, उसका एग्जाम पूरा फाइनल एग्जाम हो गया है, अब 10th स्टैंडर्ड का समझो रिजल्ट लेके आ रहा है, अब बच्चा फेल होके आ रहा है, समझो वो फेल हो गया है, तो आपको क्या लगता है वो दौड़ते दौड़ते आएगा या धीरे धीरे चलते हुए आएगा? अगर आपको लगता है दौड़ते दौड़ते आएगा, फेल हो गया है बच्चा, तो नाचते कूदते दौड़ते दौड़ते आएगा आपको लगता है, तो 1 टाइप कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मे बी वो ढीला ढाला या मे बी स्लो स्लो कदम से चल के आएगा, तो 2 टाइप कीजिए। धड़ाधड़ 2 आ रहे हैं सबके मतलब आप सब लोग को पता है कि वो अगर बच्चा फेल होके आ रहा है तो कैसे आएगा, वो उसका बॉडी लैंग्वेज आप ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हो। क्या उसका सर नीचा होगा या ऊंचा होगा? अगर ऊंचा होगा तो 1 टाइप कीजिए, नीचा होगा तो 2 टाइप कीजिएगा। अगेन 2 ओके, सिनेरियो को चेंज करते हैं, चलो सिनेरियो को चेंज करते हैं। अगर समझो वो डिस्टिंक्शन या अपने क्लास में फर्स्ट आया या मे बी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है घर पे, अब वो रिजल्ट लेकर आ रहा है, तो क्या वो दौड़ते दौड़ते नाचते कूदते आएगा या फिर ढीला ढाला नीचे मुंडी झुका के आएगा? अब सबके आंसर 1 आ रहे। मुझे लगता है आप लोगों ने सब लोगों ने बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के लिए एक पूरा कोर्स किया हुआ है, आप लोग सब माहिर हो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के लिए। भैया आपने कौन सा कोर्स किया है ये समझने के लिए, ये जरा मुझे बताइए। अच्छा, 1 क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ, क्या ये इंडियन बच्चा ही ऐसा करेगा या फिर यूएस में होगा बच्चा तो भी वैसा ही करेगा, चाहे अफ्रीका में होगा तो भी बच्चा वैसा ही करेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में होगा तो भी बच्चा वैसा ही करेगा? दुनिया के कोई भी कोने में होगा उसका बॉडी लैंग्वेज सेम होगा। सही बात है कि नहीं? अग्री करते हैं ना सब लोग? सोच के देखिए, अब ये बॉडी लैंग्वेज तो सेम होगा, मतलब कि इंसान जब दुखी होता है तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो अफ्रीकन बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश बच्चा हो, चाहे वो इंडियन बच्चा हो, चाहे वो कहीं का भी हो, उसका बॉडी लैंग्वेज तो वैसा ही हो, सबका सेम ही होगा। अगर वो खुश है तो सेम होगा, अगर वो दुखी है तो सेम होगा, अगर वो गुस्से में है तो सेम होगा, हर जगह पे सेम इमोशन का सेम रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज सेम ही होगा। अग्री करते हैं सब लोग? सोच के देखिए इस चीज को, मतलब कि बॉडी लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये कोई कास्ट, ये कोई लोकेशन, ये कोई कल्चर, ये कोई लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती, ये लैंग्वेज किसी को भी सीखनी नहीं पड़ती है। आपने सबने कोई भी कोर्स नहीं किया है, ये बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ा जाए वो समझने के लिए किसी ने आपको सिखाया नहीं कि सामने वाला अगर उदास होगा तो वो ऐसे उसके शोल्डर्स ड्रूपिंग हो गए, या वो खुश होगा तो उसका चेस्ट पफ्ड आउट होगा, या ऐसा कोई किसी ने समझाया नहीं आपको, लेकिन आप जानते ही ये ऑटोमेटिकली इनबोर्न है आपके अंदर, मतलब इनबिल्ट है, सब जानते हैं। तो वैसे ही बॉडी लैंग्वेज को बेसिकली पढ़ना भी हम जानते हैं। ये तो मैंने एक्सट्रीम सिचुएशंस बताई, लेकिन वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ बातें ऑलरेडी फिट है। जब हम सामने वाले को देखते हैं वो ऐसा करके बैठा है तो हमें लगता है अरे वो हाथ बांध के बैठा है। अब हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे कि वो हाथ बांध के बैठा है तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज क्या सिग्निफाई करता है, उसका पोस्चर क्या सिग्निफाई करता है, वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको ऑलरेडी बता दिया और आपने सामने वाले के बारे में एक अभिप्राय बना लिया। वो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, अब कॉन्शियस थॉट प्रोसेस नहीं है। वैसे ही जब आप किसी और से बात कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके बारे में एक अभिप्राय बना रहा है, एक इंप्रेशन क्रिएट हो रही है आपकी, आपके बॉडी लैंग्वेज पे से, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप उसके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप बैठे कैसे हैं, आप ड्रेस कैसे हैं, आप उसके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, हर चीज को वो सामने वाला अनकॉन्शियसली ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल वो सब कुछ एनालाइज हो रहा है सामने वाले के बारे में। लेकिन ये चीज हम प्रेजेंटेशन करने के टाइम भूल जाते हैं। हम फोकस करते हैं उसको 5, 8, 13, 18, उसको ये एसबीआई से उसको ये समझा दो, उसको वो समझा दो, उसको 2 सीसी समझा दो, उसको सीसी का प्राइस समझा दो, अरे एलोवेरा के कितने बेनिफिट है वो समझा दो, हमारे कंपनी का पूरा बैकग्राउंड समझा दो। हम कंटेंट के ऊपर इतने ज्यादा फोकस हो जाते हैं, उसको समझाने के पे इतना फोकस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा बाकी का बॉडी लैंग्वेज उसको क्या मैसेज दे रहा है, हमारी बातें क्या हो रही है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं वो अचानक हम भूल जाते हैं प्रेजेंटेशन। सेम थिंग होता है जब भी हम इन्विटेशन करते हैं, सेम थिंग होता है जब भी हम फॉलो अप करते हैं, सेम थिंग होता है जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं।
कम्युनिकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपकी टीम के साथ में, आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ में, आपके नए लोगों के साथ में। कॉन्स्टेंटली यू नीड टू फोकस ऑन दिस। अब मुझे बताइए कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि कॉन्स्टेंटली जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो हर एक चीज, आपका टोन, आपका टोनैलिटी, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब चेक करते रहे? क्या आपका पोस्चर, ड्रेसिंग, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, क्या हम एक्टर्स हैं? ये सब चीज जो पोर्ट्रे करना है ना, वो सब चीज पोर्ट्रे करने के लिए एक्टर्स माहिर है, वो सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। ओके, शैलेंद्र वर्मा कह रहा है कि सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। ठीक है, मान लिया, चलो सबकॉन्शियस माइंड का है, तो फिर सबसे पहले इस कनेक्शन को समझते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इस पे आते हैं कि बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करता है। बॉडी लैंग्वेज हमने जो अभी तक देखा, जो मैंने आपको अभी तक जो एग्जाम्पल बताया, मैंने एक बात आपके तक पहुंचाने की कोशिश की कि बॉडी लैंग्वेज जो आपका है वो आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड होता है। ये एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? मतलब कि आपके जैसे इमोशन होंगे वैसा बॉडी लैंग्वेज होगा। कितने लोग इस बात से एकदम 100% अग्री होते हैं, ये जो हमने बातें की उसके ऊपर से? प्लीज टाइप वन टाइप कीजिए। मुझे जानना है कि अभी तक आप लोग सब लोग साथ में हो कि नहीं। आई वॉन्ट टू सी, मेरा 100 से ज्यादा लोग वन, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं मैं जो आज बात कर रहा हूं। So everybody is saying one. Great, great, great. Thank you so much for that interaction. Yes, of course, one. मतलब कि आपके जैसे इमोशंस होंगे वैसा बॉडी लैंग्वेज होगा। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज सही हो जाएगा। मतलब कि आपका बॉडी लैंग्वेज हो, वॉइस का टोनैलिटी हो, जो भी हो, बेसिकली आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है। नाउ इजियर सेड देन डन। बट अभी हम लोग थोड़ा बैक ट्रैक करके एक अलग ऑफ टेंजेंट पे जाते हैं। हमारी जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, एफबीओ ट्रेनिंग, फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में हम लोग कई बार बात करते हैं जो 5 रूल्स टू सक्सेस, उसमें हम लोग बात करते हैं बिलीफ की। ये बिलीफ की क्यों हम बात करते हैं? सी, हम फॉरएवर बिजनेस में कई बार बात करते हैं एक्साइटमेंट की, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट होना चाहिए आपका। अगेन हमने बात की इमोशन की। आज आपको समझ में आ रहा है कि वो इमोशन या एक्साइटमेंट क्यों जरूरी है। वो एक्साइटमेंट होगा, वो इमोशन सही होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा हो जाएगा। फिर आपको आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, वो सब चीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपका बॉडी उस तरह का पोस्चर ले लेगा। इसीलिए एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे साइमन सर कहता है एक्साइटेड, फैंटास्टिक। मुझे सबसे अच्छा लगता है साइमन सर का, वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। दैट कांस्टेंट एक्साइटमेंट, ये राज है उनके बिजनेस का। आज जो इतना जबरदस्त बिजनेस उनका हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा जो फंडामेंटल रीजन है ना, वो है वो एक्साइटमेंट उनका। जितने भी बड़े लीडर्स है ना, उनके बारे में, उनको आप फॉरएवर के बारे में बात करो, वो कभी भी एक्साइटेड हो जाते हैं। फॉरएवर की बात करो, फुल एक्साइटमेंट, फुल ऑन एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट कहां से आता है? कहां से आता है? कोई स्विच थोड़ी ना है कि हमने टक चालू कर दिया और एक्साइटमेंट आ गया ऑन। एक्साइटमेंट आएगा कहां से? ये इमोशंस आएंगे कहां से? दे कम, एक्साइटमेंट जो आप फील करते हैं, जो एंथुसियाज्म आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके वॉइस में जो दिखता है, उसका कारण है, उसका मूल है, उसका जो रूट है, वो है आपका बिलीफ, आपका खुद का बिलीफ। इसीलिए हम लोग बात करते हैं बिलीफ के ऊपर। जो हम एफबीओ ट्रेनिंग में बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीफ। वो बिलीफ अगर आपका होगा ना, तो ऑटोमेटिकली, वो बिलीफ होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्साइटमेंट आएगा। अगर आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अगर बिलीफ स्ट्रॉन्ग करनी है तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बिलीफ आएगा। जिस दिन बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गई, ऑटोमेटिकली वो एक्साइटमेंट आएगा। एक्साइटमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी लैंग्वेज सही होगा, आपका कम्युनिकेशन सही होगा। आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, इफेक्टिव भी होने लगेगा। मतलब कि आप जो रिस्पॉन्स चाहते हैं, आप ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे। कई बार हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ स्ट्रगल करते हैं, लिटरली स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्लान बताते हैं, कोई जुड़ता नहीं है। वो क्यों नहीं जुड़ता है?
हम ट्राई करते हैं, शायद मैं ये बता दूं, शायद उसको ये ESBI समझा दूं, शायद उसको ये चेयरमैन बोनस के चेक दिखा दूं, ये सब छोड़ो। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बोलता है, आपका बिलीफ लेवल अंदर का चेक करो। जितना स्ट्रांग आपका बिलीफ, जितना ज्यादा आपका एक्साइटमेंट, ऑटोमेटिकली सब रिजल्ट्स आने लगे। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन सब ऑटोमेटिकली होने लगे। जस्ट चेक योर बिलीफ लेवल। इसीलिए बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमोशन सही होने से बॉडी लैंग्वेज सही हो जाए। यहां तक सब लोग साथ में है। अब नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस, 24 घंटे 24/7 इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सही बात है, हम ह्यूमंस है। कॉन्स्टेंटली हमारे इमोशंस एक ही स्टेट में रहे ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। अभी समझो घर में कुछ परिस्थिति हो गई या हम बाहर, हम घिरे हुए हैं, वी आर अ सोशल बीइंग, तो हम बहुत सारी चीजों से घिरे हुए कॉन्स्टेंटली। अभी हमें एक जगह प्रेजेंटेशन करना है या हमें कॉल करना है, लेकिन हमारा मूड कुछ अलग है, तो कॉन्स्टेंटली तो एक ही मूड में रह सके ऐसा तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं रह सकता है। तो फिर हम हमारे इमोशंस कैसे सही करें ताकि हमारा बॉडी लैंग्वेज सही हो? वो ट्रिक अगर जानना है तो आज मैं वही सीक्रेट आपको बताने वाला हूं। बहुत सिंपल सा सीक्रेट है। अगर इस चीज को समझ जाएंगे आप और इस चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस भी सही हो जाएंगे, आपके प्रेजेंटेशन सही होने लगेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होने लगेगा, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन भी अपने आप ठीक होने लगेगा। ऑल दैट कैन बी डन if you just understand this one super simple secret। और वो सीक्रेट ये है कि आपने ये देखा और ये आप सब लोग ने अग्री किया कि आपके जैसे इमोशंस होंगे वैसा आपका बॉडी लैंग्वेज होगा। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड जस्ट वन थिंग कि जैसा आपका बॉडी लैंग्वेज होगा वैसे आपके इमोशंस हो जाएंगे। जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होगा वैसे आपके इमोशंस हो जाएंगे। मतलब कि अगर आप इमोशनली वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो तो सबसे पहले आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लो। 5 मिनट में आपका मूड चेंज हो जाएगा। से आई विल गिव यू एन एग्जांपल। किसी को अगर बहुत ज्यादा रोना आता है ना, अगर कोई भी चीज हम इंसान है, लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती है, अगर आपको रोना आता है और आपको आपका मूड चेंज करना है ना, एक सिंपल सी बात है, खड़े हो जाओ जहां बैठे हो वहां से, मुंह पे पानी मारो और मे बी एक थोड़ा सा रनिंग जॉगिंग करके आ जाओ। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। कोई जॉगिंग करते करते रो ही नहीं सकता। एक्सरसाइज का एक बेनिफिट है, कुछ केमिकल्स हमारे ब्रेन पे रिलीज होते हैं विच आर कॉल्ड मूड एनहांसिंग केमिकल्स। ऑटोमेटिकली आपका मूड अच्छा होने लगता है। वेरी सिंपल। यू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, योर इमोशंस चेंज। तो हमेशा जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है, मे बी आपको बिजनेस पिच करने के लिए या प्रोडक्ट समझाने के लिए किसी को कॉल करना है, किसी को इनवाइट करना है कोई मीटिंग के लिए, उससे पहले आपका बॉडी लैंग्वेज पहले चेंज कर लो, मूड को ठीक करो। मूड एंड इमोशंस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। योर मूड एंड योर बॉडी लैंग्वेज आर इंटरलिंक्ड। अगर आपका मूड सही नहीं है तो सबसे पहले वो बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो। थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ, थोड़ा फास्ट चल के आ जाओ, थोड़ा मे बी ठंडा पानी मार लो मुंह पे, कुछ ना कुछ कर लो, या मे बी एक फनी वीडियो देख लो, मिस्टर बीन का वीडियो देख लो, कुछ ना कुछ कर लो। आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो। लेकिन बैठे बिठाए नहीं, खड़े हो जाओ, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। इमोशंस चेंज हो जाएंगे, उसके बाद आप ये प्रेजेंटेशन करने बैठो, उसके बाद आप फॉलो अप के कॉल्स करने बैठो। लुक इन द मिरर एंड स्माइल एट योरसेल्फ। आप अपना खुद का स्माइल देखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका मूड चेंज होता है। ट्राई इट। ऐसा लगता है कि इनर कॉन्फिडेंस पैक ले लो आरजी का। नाइस, आरजी का पैक ले लो। बट फैक्ट इज, अभी पैक लेने की बात करेंगे तो कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं पैक नहीं लेना है, पैक लेना है। अब वैसे मूड के लिए बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मूड सही करना है तो सिंपल ट्रिक मैं आज आपको बता रहा हूँ। चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। द मोमेंट यू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, योर इमोशंस चेंज। योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर इमोशंस आर इंटरलिंक्ड। तो जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन करना है, पहले आपका इमोशन सही कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस।
So today I have given you a basic complete overview, and I've also shared with you one secret to better communication, and I wish that you use this information to have more effective communication with your entire team and with more and more people. मेरा यहाँ तक का presentation, आज तक का presentation यहीं तक था. This was all that I wanted to share with you. ये topic बहुत बड़ा है. Body language के बारे में पढ़ना है तो बहुत सारी books I can recommend. Allen Pease, not only Allen Pease, बहुत सारे हैं. मतलब you can just आज इंटरनेट के ऊपर अगर सर्च करेंगे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है. सो बहुत कुछ मैंने मतलब यू कैन बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर. आप जाके ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. आई हैव ट्राइड टू शेयर विथ यू, गिवन यू अ कंप्लीट ओवरव्यू. एक बहुत बड़ा टॉपिक को बहुत सिंपल टर्म्स में बहुत छोटे छोटे से टच करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की. बट बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिए. आई होप कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा रहा है. आई होप कि मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहा है. इफेक्टिव तब होगा जब आप सब अपने अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे. आप सबके सीसीज बढ़ेंगे, आप सबकी टीम बढ़ती जाएगी और आपके कन्वर्जन रेशियो बढ़ते जाएंगे. So I wish each and every one of you all the best. I hope you use all this information. But before we wind up for the day, question answers अगर किसी को पूछने हैं तो I think Simon sir, with your permission, can we take question answers? If yeah, no problem, no problem. You can have question answers. So sir, आपकी हाजिरी में I can invite some questions. अगर कोई पूछना चाहता है तो if anybody would like to answer, ask anything आज related to the topic that we have talked about today. I think your training was so superb. In fact, also I learned something very nice, which was, you know what, was, I don't was that when you said anybody wants to cry, best is to tell him to go for a jog. Immediately change हो जाता है mood sir. This is a scientifically proven fact. हाँ, तो मेरे को अभी बहुत एक अच्छा आइडिया है. कोई भी मेरा डाउनलाइन कुरकुर के लिए आया, कुरकुर करने उसको बोलने का जॉब करके आ जाओ. Automatically कुरकुर solution. I think that was amazing. That was something very nice. In fact, also I learned a lot of stuff which was amazing. So this is a good thing. कोई भी आया बोला go for a jog, कुरकुर बंद हो जाएगा. नहीं सर सच्ची है. Sir, I'll tell you a little. No, I agree. I 100% agree. Sir, Simon sir, मैं अपना कुछ शेयर करूं मैं सर. I'll tell you frankly, when I come to the office, जब हम लोग पहले मुंबई ऑफिस में सब करते थे presentations, and if supposing I had invited somebody, and God forbid कभी mood नहीं सही होता था, if that person walked into the office, and now I have called him, I have given him a time, I have to be there, and mood is not right, अभी mood नहीं है सही, what I would say is I would invite him, shake hands, tell him to sit down, and immediately I would run up the steps to the first floor, splash my face with cold water, and jog down, again run down. So just running up one flight of stairs and coming down would automatically change my mood. कोई ज़्यादा लंबा अपने को 5 माइल का जॉग नहीं करना है, but even just more deep breathing, splashing cold water on your face, it immediately changes your mood. I would always do that before sitting down for a presentation. So I found this to work actually. No, it's amazing, and what I've even noticed is the way you explain everything today. आप sorry मैं हिंदी में बोलूँगा तो मेरा हिंदी का भी प्रैक्टिस हो जाएगा. जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है और ये नॉलेज दी है, हमारे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर को ये नॉलेज मिलेगा and they can do wonders because we have fantastic team and our team is out of the world. I mean, tell you frankly, I love my team. And even before a seminar, if you notice, Rajiv, something, sometimes even I am a human being, so I go off mood. But the minute I am in the FLP office, my body language automatically changes. You'll never see me sad or. So I have always seen you always excited. So you've been a source of inspiration for me. So what happens? वो क्या वो पूरा ये change हो जाता है. मतलब when the minute I'm in, even if I have, let's say I'm in the house और घर में कुछ कुरकुर या कुछ हो गया, and but when I come to the office, my body language changes, my
And if you notice, I say, hi, how are you? What's up? Yeah, wo. So, you know, it's very important that you relate to, even if it's not in your team, relate to everybody. Sometimes I get people who are from another team, but still I say, hi, welcome to Forever. You know, so that is a little difficult to believe, because most people in Mumbai office are from your team. Majority of the people are from your team. Yeah, but sometimes you get people from other states who come, na? So when they're coming here, they're basically a guest. So we need to welcome them. So always welcome them. So we have one question. Somebody is asking, what's the way to improve communication skill? Your session was very interesting, but what can we do on daily basis to improve our skills? The best form of learning is observation. मेरा जवाब यही है कि अगर आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है, अच्छा करना है, सुधारना है, तो कॉन्स्टेंटली लोगों को ऑब्जर्व कीजिए. द बेस्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इज न्यूज रीडर्स. जो अगर वॉइस समझना है तो आप एडवर्टाइज को ऑब्जर्व कीजिए. जो एडवर्टाइज में वॉइस ओवर्स आते हैं ना, आप देखिए वो शॉर्ट कमर्शियल 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर कितना सब कुछ बोल देते हैं, और वो वॉइस में कितना मॉड्यूलेशन, वो किस तरह से आप अपना नजरिया रखते हैं, वो वॉइस में कैसे मॉड्यूलेशन लाते हैं, कैसे कौन सी चीज के ऊपर एम्फेसिस लाते हैं, वो वॉइस को एनालाइज कीजिए. वैसे ही न्यूज रीडर्स को आप देखिए. न्यूज रीडर्स को ज्यादा बॉडी लैंग्वेज यूज करने का मौका नहीं रहता है. वो एक अपना नोटपैड और ये लेकर बैठे हैं, और उनको सामने टेबल पे से उठना नहीं है, वो टेबल पे बैठे बैठे अपना न्यूज पढ़ रहे हैं. Now I'm not talking about Arnab Goswami or any specific, but in general बहुत सारे अच्छे न्यूज रीडर्स हैं जो बहुत प्रोफेशनली न्यूज रीड करते हैं, और उनको आप एनालाइज कीजिए without using body language also, but just using their voice, how they will convey the news to you. It's very powerful. तो उसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा. ऑब्जर्व करेंगे तो आजू बाजू में बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलती है. And these things, when you start observing, start putting into practice on a daily basis. आपके daily activities में थोड़ा improvement करते रहेंगे. Make your own videos and see your own videos. Make your own audios and hear your own audios. जब मैंने मेरी पहली बार मेरा खुद का ऑडियो सुना, तो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि ये मेरा वॉइस है. So it happens. But धीरे धीरे जैसे ज्यादा करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस होती रहेगी. So on a daily basis, I would suggest, just first thing is, if you really wish to improve, start observing. ऑब्जर्व कीजिए, आपके आसपास बहुत कुछ दिखता है. एडवर्टाइज को ऑब्जर्व कीजिए, न्यूज रीडर्स को ऑब्जर्व कीजिए. आपके आसपास अगर कोई भी है, या मे बी अगर आप ऑफिस में जाते हैं, कोई बंदा ज्यादा अच्छी तरह, क्योंकि मैं साइमन सर को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था इनिशियली, जब मैं ये सब कुछ आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. तो मैं व्हाट इज इसका, इनके राज क्या है, क्या कॉन्स्टेंटली कैसे आदमी इतना एक्साइटेड हो सकता है. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज ऑब्जर्व. नॉट ओनली साइमन सर, जितने भी लोग सक्सेसफुल है, मैं हमेशा लोगों को ऑब्जर्व करते थे. So observation is the best form of learning. If you really want to improve, my single tip to you would be start observing on a daily basis. Rajiv, can I give one tip with your permission? Sir. नहीं, because मैं भी सीखूंगा sir. Okay, एक tip ये है कि we have to improve your communication. एक question था. What you should do is come in front of the mirror and talk in front of the mirror. Now, when you talk in front of the mirror, now you have an advantage. You have a mobile phone. तो खुद का मोबाइल का रिकॉर्डिंग खुद का करो and listen to how you talk. Now, second thing, if you have somebody in your house, like your sister, your brother, cousin, anybody you have, just make them sit in front of you and introduce yourself. Talk in front of them. The idea is you learn how to talk when people are there. Talking alone and talking when people are there, it's a different setup. Second thing, let them also correct you. Now, somebody might not be right, but out of 10 comments they might give, maybe there's one point that you can change, and you can change that. अगर वो भी नहीं है, कोई घर में कुत्ता है, बिल्ली है, I mean, actual dogs in your house, make them sit in the front. Bolo, Tommy, sit here. I want to talk something, and talk in front of them. Maybe they'll start barking. That means it's good. So ये भी आप कर सकते हैं. मतलब आप जितना बात करेंगे, कोई भी हो, आप सामने बात करो. You know, the minute you talk in front of people, it changes a lot. And today, can we practice in front of our wives? Why not? That is the best thing, because I would not want to. The highest degree. The highest degree of, मतलब वो सबसे last challenge है. I sent you a nice joke, if you remember, on the. I know. वो सबसे highest level का challenge है. We'll not talk about that on the Zoom meet. So Anurita is also there. She's also fantastic. We had Mr. Lal from. So we have a lot of excellent speakers. Lal, and we had somebody from. In today's training, there was somebody from Dubai also. That was fantastic. So we have a fantastic group.
Then on your communication, I think communication is very important when you do eye contact. I think which also Rajiv will agree. When you're doing eye contact, you should know how to give eye contact. For example, I could do eye contact. That's what I said. And I could be a humble eye contact. And I'll say, "Hi, welcome." You know, this totally changes the way you look at a person. And eye contact is very important. Not continuously. You know, when you say eye contact means I don't look continuously. I just give a glimpse, which Rajiv has explained very well. And I think recording your own video, as somebody says here also, is the best thing. Record, show, and when you're seeing it, see it on a laptop or see it, but don't send it to others. Or maybe you can send it to somebody who's very close to you, or who you consider your guru or your motivation guy, maybe Rajiv, maybe somebody else, whoever you want to send, just send it, and you know they can give a comment on your introduction and how you do it. So when your introduction, how you introduce, "Hi, my name is Simon Davidson. I'm from this fantastic company called Forever." "Oh, I'm Simon Davidson. I'm from this amazing company called Forever Living." So how you introduce yourself, your setup, your body, then be humble. Don't be too aggressive. This is what I would also suggest, because you want to make, you're not going for a fight. You're going to win people's and you're going to win somebody's heart. Thanks, Rajiv, for giving me the time. Thank you, sir. Thank you for giving us this platform. So, thanks to you. Yeah, I think now most of them have. I don't. Your seminar was so superb and up to the point. In fact, your PowerPoint was very good. And as I told, not just I have learned some new points, but this is a good idea which I learned and was. I would like to thank you from everybody that this was outstanding, and I would like to thank. Anything else you want to say, Rajiv, before we close? No, thank you. Thank you. Okay, thanks. It was fantastic. So we'll expect some more trainings from you, and all the best. And guys, Forever is the best. Don't even think of something else. Don't even think in your dreams, because there's nothing better than Forever, guys. Trust me, I'm with this company for 21 years. I know what a lifestyle I'm having. Even in this Corona time, we were the only paid the highest amount of commission, the highest amount of setup, not only in India, worldwide. So guys, thank you. Thanks, Rajiv, again. All the best, and thanks a lot. Sir. Thank you. Yeah, thank you. Thanks, guys.